Okay. Next, please. I am Sylvia and I want to study cybersecurity. Very good. Next, please. My hobbies are dancing and singing. Okay, Radhika. Next, please. I am and my aim is a businessman. Next, please. I'm Manish Kumar. I want to be an army officer. Next. I'm Jeffrey Verma. I want to become a successful surveyor. Next, Shinu. I'm Sheena. I want to be a successful commentator. Next, please. I'm Garima. I want to be an IS. Next. I'm Sandeepa. I want to be a doctor and someone. Yes, next, Pranav. I'm perfect fifth standard from Gulchar. नेक्स्ट मिस्टर रविकांत, बोलिए। कुछ भी हिंदी में बोलिए यार, क्या प्रॉब्लम है? आप बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे पता है। हाँ। और आप तो बहुत अच्छे स्पीकर हो, सिर्फ लैंग्वेज में है, बस इंग्लिश तो, हिंदी तो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट। I am Rajat. I want to be a successful bank manager. नेक्स्ट प्लीज। I am Sunil San. मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ. नेक्स्ट। I'm Pashan. I want to see myself as successful engineer. नेक्स्ट प्लीज। I am Manoj Kumar. I am army man. I want to be an army officer. नेक्स्ट। I am Rakesh Padak. I want to be an army officer. नेक्स्ट। I am Kailash Bishnoi. I am medical rep. Okay, so all of you have covered. So students, today we have a very interesting topic. You all must be knowing. Do you know the topic? हम सबको topic पता है? Your topic is, please go through. Your topic is sequence of tenses, right? Clear all of you? So see students, before we start this topic, I want all of you first to tell me that what are tenses? Can anybody tell me the meaning of tenses? मुझे बता सकता है कोई? Anybody? Yes, Shinu. Tenses क्या होते हैं? ये तीन तरह के होते हैं. Can you name them? Pardon? Present, past, and future. Okay. We know very well that there are three types of tenses, right? Students, मुझे और भी कुछ जानना है आपसे. अगर हम जान गए कि tenses क्या होते हैं, तो मुझे ये बताइए. आइए, वेलकम. So students, tenses के अंदर आज हम सबसे important part करने जा रहे हैं. That is sequence of tenses, right? But before that, again I want to ask you that do you feel that if we learn tenses, अगर हमें tenses आ जाए तो हमें spoken English आ जाएगी, ऐसा लगता है आपको? Yes, sir. Yes. Dear girls, yes. Anybody who want to say no? Yes, sir. I agree with that girl, and even few of my colleagues, those who stated no, because tenses are not enough to learn English, to speak English. Students, tenses ही अगर enough होते तो sequence of tenses का रोल क्या होता? आज जो हम upper part जा रहे हैं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक ही है, that is it plays a vital role. वो एक vital role अदा करने वाला है sequence of tenses. इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो there are sequence of tenses. Other than that, there are structures. In my book also I have written almost 70 structures. So it shows that still other than tenses there are so many structures are also which plays a vital role to speak English. और अगर हमें अपनी spoken English बहुत अच्छी रखनी है, we should have a command on English in all aspects, not only tenses. We should have a command on tenses, on sequence of tenses, as well as on structures. Since today is the topic of sequence of tenses, so I'll start the topic, but my always guideline to all of you that you should try your best to be versatile in every field. Like our last Sunday, because last Sunday it was Diwali, last Sunday the lecture was based on modals, which plays a vital role again to speak English, right? Can, could, would, I have taught you very well, and I hope that you must have learned also in a very decent manner. Now that our topic, sequence of tenses, is very interesting. Sequence, this word shows that definitely there are two things. Agree करते हो students? दो चीजें हैं, तभी तो sequence बनेगा. अगर मैं किसी को बोलूं sequence में रहो, किसी को बोलूं line में रहो, इसका मतलब लोग वहां पर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा. तभी हम sequence word use कर रहे हैं. जरूर इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है, एक और दो. अब इसका sequence बिठाना है, right? तो स्टूडेंट्स, दो तरह की लाइनें हैं, दो तरह की बातें हैं जो अटैच्ड है एक दूसरे से. आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैंने कहा था कि वह टॉप करेगा. मैंने कहा था कि नेहा आईएएस बनेगी, आरएएस बनेगी.
अब मुझे ये बताइए, इसमें दो लाइनें आप ध्यान से देखो, वन इज मैंने कहा था और सेकंड इज नेहा विल टॉक IAS RAS व्हाटएवर, बट आई सेड सो। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर दो लाइनें हैं तो इसमें से एक लाइन कौन सी होगी? इसमें से एक लाइन होगी प्रिंसिपल क्लॉज और एक लाइन होगी subordinate clause, right? So since we know that there are two clauses, one is principal and another is subordinate clause. Agree students? Now coming on this principal clause, अगर मैं देखूं तो principal clause plays a very very vital role. क्योंकि मैंने ये बात कही तो देखो मेन बात कौन सी है? मैंने क्या कहा? और जो सेकंड बात मैंने नेहा के लिए बोली वो किसमें चलेगी? Subordinate clause. Right? That reads in subordinate. और ये किसमें चलेगी स्टूडेंट्स? Principal clause. Agree? So there are two clauses. One is principal, another is subordinate. अब कुछ रूल्स हैं जो हमें इंटेलिजेंट बनाने वाले हैं और वो रूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, यानी कि टेंसेस के भी फादर कहूंगा मैं उन्हें, और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए उसे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहा गया है। नो डाउट जब कभी हमें सीक्वेंस बिठाना है तो हमें हर चीज जाननी है। तो हमारा जो पहला रूल है वो इंटरेस्टिंग है और उसको ध्यान से समझो। उसको ध्यान से समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज समझनी है हमें कि यदि, और आई कैन से इफ द प्रिंसिपल क्लॉज is in present or future, any other clause can come after that in any form, in any type of words. यानी कि अगर मेरा principal clause किसमें हो? present या फिर future, तो इसके बाद में मैं कोई भी क्लॉज लेके आ सकता हूं। यहां पर प्रेजेंट भी आ सकता है सबऑर्डिनेट में, यहां पर फ्यूचर भी आ सकता है और यहां पर पास्ट भी आ सकता है। आपको एग्जांपल दो, he plays वह खेलता है, so that he may win, प्रेजेंट आ गया। I told, नहीं told तो पास्ट हो जाएगा, I say that Ram is a good boy, प्रेजेंट आ गया। I say that Ram was a good boy, क्या हो गया? पास्ट हो गया। I say that Ram will be a good boy, जरूर होगा, वो एक अच्छा लड़का होगा। Which shows that I can use anything after principal clause, provided principal clause किस में हो? Present और future में। मगर आप लोगों ने मैक्सिमम देखा होगा, whenever we are speaking or we are saying something, हम लोग ज्यादातर पास्ट में बातें यूज करते हैं। और जब मैं स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर देता हूं तो मैं एक क्वेश्चन भी पूरा करता हूं आप सबसे कि सबसे ज्यादा बातें कौन करता है? गजल आप बताओ, बॉयज करते हैं या गर्ल्स करती है? गर्ल्स करती है, राइट? और गर्ल्स में भी अगर आप चेक करो अपनी मदर सिस्टर को तो आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम पीपल आर टॉकिंग इन विच टेंस? Past, not in future. They talk mostly in which tense? They talk in past tense. वो मैक्सिमम past tense में बात करते हैं। अच्छा, past tense में भी अगर वो बात करते हैं तो आप नोटिस करना कभी कि फ्यूचर और प्रेजेंट में कुछ तो बात करते हैं, राइट? इसीलिए साइंस ये अप्लाई करती है कि पास्ट टेंस हम अपनी लाइफ में 75% रहते हैं। हम कभी भी किसी से बातें करते हैं, मैक्सिमम आप देखना किस में बात करोगे? पास्ट में। ये हुआ था, वो था, उसने ये कह दिया था, मैंने ये कह दिया था। इट हैपेंस लाइक दिस, राइट? और हार्डली 15 और 10% दिया जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर को। तो सबसे ज्यादा नोटिस किसको रखा जाता है? पास्ट। तो यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है वो अपने चलते हैं अभी। उस कॉम्प्लिकेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। उस कॉम्प्लिकेशन में है कि यदि इस तरफ पास्ट हो, इस तरफ का मतलब कौन सा टेंस हो पास्ट में? प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में हो तो आगे आने वाला क्लॉज हमेशा पास्ट में ही रहेगा। Got it? If the principal clause is in past tense, the subordinate clause will also be in the past tense. I said that he would deceive you. He will deceive you नहीं हो सकता। He would, will का क्या बन जाएगा? मैंने आपको मोडाल सिखाया था, बताया था ना कि would is a past of will। तो क्या बन जाएगी हमारी लाइन? He said that he would deceive you। तो हमने नोटिस किया एक बात को बहुत अच्छे से कि यदि आपकी लाइन पास्ट में है
प्रिंसिपल क्लॉज, तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बन जाएगा? आई टोल्ड दैट ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सही है, मगर आई टोल्ड दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग, क्योंकि पास्ट के साथ क्या आता है? पास्ट आता है। एग्री? अब हमने एक पॉइंट और सीख लिया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर अगर प्रिंसिपल क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बन सकता है? कोई भी टेंस बन सकता है, पास्ट भी बन सकता है, फ्यूचर भी बन सकता है और प्रेजेंट भी बन सकता है। मगर इफ सपोज योर प्रिंसिपल क्लॉज इज पास्ट, देन टेल मी व्हाट विल हैपन? सबऑर्डिनेट क्लॉज सिर्फ किस में आएगा? पास्ट में, राइट? अब स्टूडेंट्स, एवरीथिंग हैज एन एक्सेप्शंस, every coin has two parts, two sides, right? Head and tail. Similarly, if I say that all the personality development students are genius, is it possible? It is not possible, because few may be having some problem, few may not be knowing Hindi, some few not having knowing some English, some words, some grammatical problems, some may be having few things, few may be fear of interview, कहीं ना कहीं कुछ सब में छोटी मोटी कमियां होती है। एग्री करते हो? तो हम ये नहीं कह सकते 100% एवरीबॉडी इज जीनियस, बट आई एम श्योर दैट इफ यू आर अ प्रीटी स्टूडेंट्स यू विल बी जीनियस, आप जीनियस हो जरूर जाओगे, प्रोवाइडेड यू शुड बी अ रेगुलर कैंडिडेट ऑफ द लेक्चर्स, एटलीस्ट एट संडे लेक्चर्स यू शुड बी रेगुलर फॉर दैट। इफ यू रिमेन रेगुलर यू विल बिकम जीनियस। सो लेट अस सी हाउ। अगर इधर पास्ट है तो हमने क्या नोटिस किया? पास्ट, मगर हर चीज का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाद। तो देखिए, समटाइम्स व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ बातें होती है। इधर ध्यान दो, आई एम सेइंग यूनिवर्सल ट्रूथ्स। मैं बोलता हूं सूरज किस तरफ उगता है स्टूडेंट्स? ईस्ट में। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मेरी लाइन में ध्यान से देखो, आई सेड दैट, मैंने लाइन किस में रखी? पास्ट में। अब रूल के अकॉर्डिंग सन राइज होगा कि सन रोज हो जाएगा? रोज होना चाहिए, मगर नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये होते ही लाइन पता है क्या बनेगी? मैंने कहा था कि सूरज पूरब में उगता था, तो बताइए ये लाइन गलत है कि सही है? ये लाइन गलत हो जाएगी। इसलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें से एक एक्शन क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी हो तो हम प्रेजेंट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में क्यों ना हो। एग्री ऑल ऑफ यू? तो हमने नोटिस किया कि यदि अगर कोई इधर पास्ट में बात कर रहा है, he said, he told, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर वाला प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में हो सकता है? यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो वो प्रेजेंट में भी हो सकता है। एग्री करते हो स्टूडेंट्स? यहां तक। हम एक और पार्ट में चलते हैं, हैबिचुअल ट्रूथ। ये वर्ड सुना आपने स्टूडेंट्स? हैबिचुअल ट्रूथ। यदि मैं बोलूं इन माय क्लास सेजल, माय न्यू स्टूडेंट, इज अ अर्ली राइजर। सेजल कितने बजे उठती हो आप? 9? ओहो, लेट राइजर नॉट अर्ली राइजर। ठीक है सेजल, तो मैं आपके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, बट अगर मैं नेक्स्ट कलीग के लिए बोलूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि इन माय क्लास गरिमा इज अर्ली राइजर। सो इफ आई विल से गरिमा इज अर्ली राइजर, अब मुझे ये बताइए ये हैबिट है उसकी उठने की, जल्दी उठने की। जैसे सेजल हमारी लेजी गर्ल है, वैसे गरिमा हमारी डिसेंट और ओबीडिएंट गर्ल है कि भाई टाइम पे उठना, टाइम पे उठना, पंक्चुअल गर्ल। तो लेट अस सी हियर, if there is a habitual truth, then also it will come in the present only. If you say like this, you say he said that he was early riser or he is early riser. He is early riser. Because this is a habit, you can't change. आप नहीं कह सकते कि वो अर्ली राइजर था, वो आज भी है, तो आपको उसे प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट which is quite truth is quotations. Students, quotations सुने कभी आपने? आप में से कोई मुझे कोटेशन सुना सकता है एक अच्छी सी? कोई एक छोटी सी कोटेशन? एनीबॉडी? एनीबॉडी? हाँ, मैं आपको सुनाता हूं। लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। जिंदगी खुशियों से भरी है। अब बताइए आप में से कोई मुझे कोटेशन सुना सकता है बिल्कुल छोटी सी अच्छी सी? हाँ दीपा? लाइफ इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। वेरी गुड। प्रोफेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपने की गई पहली भविष्यवाणी। तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब हो गया पहले से जो आप अपने बारे में भविष्यवाणी करके रखते हो वो पूर्ण करती है लाइफ आपकी। तो वो मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया था ना, कैसे आपको जीवन में चीजें पानी है, कैसे आपको सपोर्ट करना है, करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
क्या बोलता है वो हमेशा ऊपर से? हाँ, ये वर्ड याद है ना आपको, तो वो अप्लाई करना है अपने को। तो ये कोटेशन बहुत अच्छी है। अब मेरी बात सुनिए, ही सेड, उसने कहा, पास्ट आ गया, आगे कोटेशन आ रही है स्टूडेंट्स। कोटेशन को आप पास्ट में डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते। लाइफ इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। लाइफ यू कांट से वाज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब लाइफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नहीं है, ऐसा हो सकता है? अभी भी आपको क्या बोलना पड़ेगा? लाइफ इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो आपका ये जो रूल है ये गलत अप्लाई हो गया, क्योंकि एक्सेप्शंस चल रहे हैं। तो हमने 3 एक्सेप्शन सीख ली हैं। पहला क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें इधर पास्ट हो, यानी प्रिंसिपल में पास्ट हो तो सबऑर्डिनेट पास्ट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कम्स योर हैबिचुअल ट्रूथ, नेक्स्ट कम्स योर कोटेशन। नाउ अगेन वन मोर पॉइंट दैट इज रिमेनिंग इज साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ, न्यूटन ने कुछ कहा था, हिंदी में बता सकते हो क्या कहा था? क्योंकि इंग्लिश में तो मुझे पता है, एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। वेरी गुड। हर क्रिया पर एक प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया पर एक प्रतिक्रिया होती है, राइट? होती है, और न्यूटन ने कहा था, तो बताओ होती थी लगा सकता हूं क्या मैं? नहीं लगा। तो हमारा एक और गोल्डन रूल बन गया है कि साइंटिफिक लॉ भी कभी दिया हो तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसमें आएगा? हमेशा प्रेजेंट में आ सकता है, पास्ट की जरूरत उसको नहीं है। स्टूडेंट्स, यहां तक आपको बुक में मिल जाएगा, किसी भी बुक को खोलोगे ग्रामर की, आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक यूनिक पार्ट सिखाने जा रहा हूं व्हिच आई डोंट थिंक यू वुड गेट इन एवरी बुक। वो भी एक एक्सेप्शन ही है, और वो कैसा एक्सेप्शन है उसको जरा ध्यान से देख लो। वो एक्सेप्शन एक वर्ड से है, वो है देन। ये आपको पार्ट हर बुक में नहीं मिलेगा। इस पार्ट में क्या सिखाता है राइटर में, ध्यान से समझना। सपोज this subordinate clause is followed by then and the principal clause is past, any clause can come, any verb can come after this. You are not bound to use only past tense. Understood? ये जो रूल है ये आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। ये रूल क्या कह रहा है मैं आपको हिंदी में दोबारा से बताता हूं कि प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले क्या आ गया? देन आ गया। He liked you, he, चलो loved you, he loved you, past है, loved है, he loved you, then आ गया। he likes me भी सही है, he will like me सही है, और he liked me भी सही है। तो like भी सही है, will भी सही है, और likes भी सही है। यानी कि इसके बाद हम कोई भी टेंस लगा सकते हैं। तो ये यूनिक लॉ है, हर बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो हमने एक और बात सीख ली है कि यदि कभी देन दिया हो और इधर प्रिंसिपल हो और इधर सबऑर्डिनेट हो तो, और इधर पास्ट हो, तो आप इधर कोई भी लॉ, कोई भी वर्ब लगा सकते हो, एप्लीकेबल। तो हमने ये बात नहीं सीखी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? पास्ट का आपको क्लियर है सबको? अब हम एक यूनिक चीज में चलते हैं स्टूडेंट्स। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने कभी ये देखा है, कभी सुना है आप लोगों ने, कभी आपको ये कहा गया हो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता? सुना है? तो इसकी स्टार्टिंग इफ से होगी, कुछ याद है आपको? इफ, और अगर इफ से होगी तो अंदर वॉज नहीं आता, वर आता है। कुछ याद है? वॉज नहीं आता, वर आता है। इफ आई वर होगा कि इफ आई वॉज होगा? तो आप दो वर्ड में से बड़े ध्यान से समझ लो। जो लोग नोट्स बना रहे हैं बना सकते हो। दिस यू मेकिंग नोट्स इज आल्सो गुड थिंग। देयर इज वन वर्ड दैट इज as if and as though. Look up here. When you are using as if, जब आप as if यूज करते हो, that time what happens? As if या as though एक ही बात है। जब तुम ये यूज करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है आपकी, ये किस टेंस में आ रही है। Suppose your principal clause is in, I would say, present tense. आपकी जो principal clause है वो क्या है? प्रेजेंट है। She walks, वह चलती है। She walks, बताओ प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? प्रेजेंट है। She walks as if या as though। अब आगे मालूम हमेशा क्या आएगा? अगर इधर प्रेजेंट है तो आगे हमेशा पास्ट आएगा। गॉट इट? यदि मैं ऐसे बोलता she walked as if, तो आगे हमेशा मालूम क्या आएगा स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट आएगा। इजी? तो हमने एक बात समझी, मैं आपको लिख के देता हूं। The thing is that if suppose
here it is present, and as if is coming, you will use what? Past. If suppose here it is past, as if is coming, you will use past perfect. You want example? I'll give you an example. She smiles as if she were mad. If लगा है, was तो लग नहीं सकता, क्या लगेगा? were. तो मैंने क्या पास्ट दे दिया, तो हमारी बात सही होगी. अगर प्रेजेंट है तो इधर क्या लगेगा? पास्ट. अब की बार इधर क्या है? He talked as if. अब की बार क्या है इधर? पास्ट. इसलिए इधर क्या लगना चाहिए? पास्ट परफेक्ट. He had been. मैड कह दो, इंटेलिजेंट कह दो, जो आपका मन करता है, सेम कह दो, इनसेन कह दो, जो मन करे. बट द थिंग इज दैट क्या आ गया? हैड बीन, यानी कि क्या लग गया? पास्ट परफेक्ट. So we made a rule that suppose as if is coming or as though is coming, and if the before as if and as though there is a present tense, you will always use in subordinate clause past tense. And if suppose as if and as though is there and the principal clause there is past tense, then you will use always in the subordinate clause past perfect. Got the rule? Clear है सबको? और ये बात तो शायद मैंने आपको शुरुआत में समझाई दी थी कि यदि if हो तो क्या लगेगा? वर हो जाएगा. बताइए आपको, बॉस तो नहीं लगेगा. तो ये तो कॉमन हो गई बात. क्लियर है? अब हमने एक बात तो सीख ली है कि as if और as though का रूल. क्लियर है सबको? श्योर? शैल वी मूव फर्दर? अगर अभी भी किसी को लगे कोई डाउट, दे आर रेडी टू आस्क. स्टूडेंट्स, during my last lecture I taught you one modal should. एग्री करते हो? उस मॉडल के अंदर मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था लेस्ट. कितने लोगों को याद है? बॉयज, गर्ल्स? हाँ जी. नहीं, ऐसा है कि नहीं है? नहीं. एनीबॉडी एल्स? कहीं ऐसा ना. वेरी गुड. कहीं ऐसा ना हो कि. तो देयर इज वन वर्ड दैट इज लेस्ट. इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा ना हो कि. ऐसा ना हो कि, इसका मतलब इसके अंदर ना ऑलरेडी छुपा हुआ है. ग्रामेटिकल कॉम्पिटिशन में बहुत आते हैं. हमारे बैंक पीओ को पता होगा कि इसके साथ नोट लगा आता है, कभी कभी मे नोट लगाता है और वो ग्रामेटिकली गलत होता है. एग्री करते हो? तो स्टूडेंट्स, whenever you are going for any competitions, you will come to know that suppose there is a subordinate clause and before that subordinate clause there is less, you should always apply should. क्या अप्लाई करोगे आप? हमेशा should. बस इतना सा पॉइंट आपको सिखाना है. कहीं ऐसा ना हो कि. तो हम लोग एक लाइन बोलते हैं, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो. She works. She works. वह कार्य करती है. She works hard lest she works की जगह आप करो work hard. she works मत करो, work hard. जैसे अपने किसी को प्रेशर देते हैं ना, काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि, तो आप ऐसे बोलो work hard lest you should fail. अब मुझे इसकी हिंदी बता सकते हैं आप? work hard lest you should fail. बताइए. मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. इज इट क्लियर? तो हम समझ गए बहुत अच्छे से लेस्ट का यूज. और लेस्ट का एक गोल्डन रूल सिर्फ एक ही स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, वो है लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? शुड. इज इट क्लियर? कोई भी टेंस आ सकता है इसके बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कोई नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज यूज लेस्ट आफ्टर should. Is it clear to all of you? Going on the very interesting part. अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ जा रहा हूं. उससे पहले दो चार बातें आपको सिखाना चाहूंगा. स्टूडेंट्स, कभी-कभी हम ऐसा बोलते हैं, यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, यदि ऐसे हो तो मैं ऐसे नहीं करूंगा. मुझे आप ये बता सकते हो इन दोनों लाइनों में से मेन लाइन कौन सी है? यदि वाली लाइन कभी मेन लाइन नहीं हो सकती. वो प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी नहीं हो सकता. आप बड़े ध्यान से समझिए. यदि आप सब आओगे तो मैं लेक्चर दूंगा. तो यहां पर ज्यादा जरूरी बात क्या है? लेक्चर देना.
तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमेशा क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि यदि वाली लाइन यानी इफ वाली लाइन कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकती है, तो जो सेकंड लाइन है वो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। अब आपको एक नया रूल सिखाता हूं जो आपको बड़ा सिंपल तरीके से सीखना है। बुक्स में ऐसे रूल नहीं होते, क्योंकि बुक्स अगर ऐसे रूल सिखाने लग जाएगी तो आप समझोगे भी नहीं। ये ज्यादा अच्छा है कि हम फेस टू फेस सीख लें। जहां पर आप इफ लगा रहे हो उनके साथ, उस लाइन के साथ, उस प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आप कभी भी विल शैल यूज नहीं करोगे। क्या यूज नहीं करोगे? विल शैल। यानी कि मैं कभी ऐसे नहीं बोल सकता इफ आई विल प्ले, ये लाइन गलत है, क्योंकि मुझे इतना ही बोलना है इफ आई प्ले। गॉट इट? अगर ये सबऑर्डिनेट लाइन है तो प्रिंसिपल लाइन के अंदर मुझे विल लगाना जरूरी है। गॉट इट? तो हम एक लाइन समझते हैं। इस लाइन को इधर देखो, इफ इट रेन्स आई शैल, शैल लगेगा, आई शैल नॉट गो आउट। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स के अंदर, लुक अप हियर, इफ इट रेन्स एनीवेयर, कहीं पर भी विल शैल यूज हुआ? नहीं हुआ। आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से, लाइनों में से प्रिंसिपल कौन से, सबऑर्डिनेट कौन से? जल्दी बताइए। I shall go out to the principal. आई शैल वाली Principal. प्रिंसिपल होगी और इफ इट रेन्स वाली सबऑर्डिनेट होगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हम एक बार और नोटिस में रखते हैं कि ये क्या सिखाना चाहता है। ये आपको ये सिखा रहा है कि इफ टू थिंग्स हैपनिंग टुगेदर वन एट द अनदर टाइम इन फ्यूचर वी विल यूज दिस कंसेप्ट। कंसेप्ट बहुत इजी है। कंसेप्ट ये है यदि, और हमें यदि दिखते ही हमें पता लग जाना चाहिए ये कौन सा सबऑर्डिनेट है, प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में विल शैल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना। तो हम लोग बहुत क्लियर हो चुके हैं बिना किसी फंडे के, बिना किसी रूल के, कि हम लोग इस लाइंस को हमेशा एक्यूरेट बनाएंगे ही बनाएंगे। कमिंग ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यहाँ पर जितने भी बच्चे कॉम्पिटिशंस वाले हैं, जिन्हें लगता है हमें बैंक का कंपटीशन देना है, एसएससी का देना है, जिन्हें क्लियर आउट करना है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक लाइन बोलता हूँ। यहाँ पर जितने बच्चे कंपटीशन वाले हैं उनको याद भी आ जाएगी अपना बुक्स के अंदर कुछ लाइंस। डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। बताइए ये लाइन याद आ रही है आपको? गर्ल्स कंपटीशन की तैयारी करते हो आप लोग तो आपको पता होगा ये लाइन बड़ी कॉमन है और बहुत बार एग्जाम्स में आएगी। अब ऐसी लाइन को बिल्कुल इससे अगर मैं कोरिलेट करूं ना रेन वाली से, तो रेन में फ्यूचर के अंदर बात हुई थी और एक के बाद एक थी। यहां पर पास में बात हुई है और एक के बाद एक है। इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि इफ वाली के अंदर क्या था, यू आर टॉकिंग ऑफ फ्यूचर, और अब जो मैं बात कर रहा हूं यू आर टॉकिंग ऑफ पास्ट। इतना ही फर्क है। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई थी। चलिए अब मुझे सबसे पहले ये बताइए इन दोनों में से मेन बात क्या है? डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया था। बताइए, पेशेंट मर गया, राइट? अब अगर वो मेन बात है तो मेन बात का एक और गोल्डन रूल सीख लो। यदि, और सपोज आई कैन से, इफ सपोज सच लाइन इज गिवन टू यू इन योर लाइफ। कैसी लाइन दी हुई हो कि यदि ऐसा होता तो ऐसा ऐसे करके लाइन दी होती, देन यू शुड मेक अ गोल्डन रूल कि इसमें पहले काम कौन सा हुआ है। बताइए, डॉक्टर वाले में पहले क्या हुआ है? मेरे पहुंचने से पहले क्या हुआ है? मेरे लेक्चर शुरू करने से पहले लाइट चली गई। बताइए पहले क्या हुआ है? इंग्लिश बना सकते हो इसकी? बताइए, मेरे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लाइट चली गई। इंग्लिश करिए। द लाइट। अब हम लोग यूज करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, और आप सब जानते हो अच्छे से कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। बताइए, लाइट का जाना, क्योंकि लाइट पहले गई है। जो चीज पहले हो ना उसको परफेक्ट में डाल दो। ये रूल याद रख सकते हो, जो चीज पहले हो उसको परफेक्ट में डाल दो। पेशेंट वाले डॉक्टर में पहले क्या हुआ था? पेशेंट गया, परफेक्ट में डाल दो। मेरे पहुंचने पहले क्या हुआ था? नहीं, लेक्चर स्टार्ट स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, ट्रेन को परफेक्ट में डाल दो। अब लाइन बनाते हैं हम। सबसे पहली लाइन डॉक्टर वाली। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर गया था। द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि परफेक्ट में डालना है मुझे, और बात पास्ट की है तो पास्ट परफेक्ट ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होने से ना। द पेशेंट हैड डाइड
before the doctor reached. Right? The train had departed. ट्रेन के लिए क्या वर्ड यूज होगा? Departed. आप अगर ट्रेन या बस में चढ़ते हो ना, आप बोर्ड वर्ड यूज किया करो. क्या यूज करोगे? बोर्ड. BOARD. बोर्ड एक्ट. स्टेशन, ट्रेन, बस, किसी के लिए भी, हर चीज, कार, प्लेन, आप सबके लिए क्या यूज कर सकते हो? कॉमन बोर्ड. ठीक है? वैसे लोग स्टेप अप भी करते हैं. स्टेप अप मोस्टली जैसे अपने घर की जो स्टेयर्स वगैरह उसके लिए यूज किया करो. और क्लाइंब तो जब आप पेड़, पहाड़, लकड़ी वाली लैडर वगैरह पे चढ़ रहे हो तब आप क्लाइंब यूज करो. अदरवाइज आप स्टेप अप यूज करो. और ट्रेन, बस के लिए क्या यूज करोगे हमेशा? बोर्ड. टू बोर्ड. राइट? अब आप मानिए कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? अब मेरा लास्ट पॉइंट बताइए हिंदी में क्या और मैंने बताया था. कोई और पॉइंट? लाइट चली गई. द लाइट हैड गोन. गो, वेंट, गोन. लाइट के लिए क्या लगेगा? गो, वेंट, गोन. द लाइट हैड गोन बिफोर आई स्टार्टेड माय लेक्चर. तो मैंने अपनी वाली बात क्या करी? सिंपल पास्ट में करी. और जो दूसरी जो बात थी उसको क्या किया? फ्यूचर, उसको मैंने पास्ट परफेक्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे काम के अंदर हमेशा जो पहले काम हुआ उसको क्या करोगे? हमेशा परफेक्ट में डाल दोगे. बस इतनी सी बात है. मेरे खड़े होने से पहले कोई आ गया था. पहले क्या हुआ? कोई आ गया, को परफेक्ट में डाल दो. मेरे स्टार्ट करने से पहले किसी ने आंसर दे दिया था. पहले क्या हुआ? किसी ने आंसर दे दिया, उसको परफेक्ट में डाल दो. ऑब्वियस है, उसको परफेक्ट में डालोगे, मुझे सिंपल में डालना पड़ेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने एक और बात सीख ली है कि पास्ट के अंदर अगर दो बातें हो रही हो और एक के बाद एक हो रही हो तो हम इसके अंदर एक को तो परफेक्ट करेंगे और एक को सिंपल पास्ट करेंगे. इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल. कमिंग ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट स्टूडेंट्स, आप सबने वुड हैव सुना होगा. वुड हैव. वुड तो सिखाया था मैंने आपको, बहुत अच्छे सिखाया था. वुड के फायदे बताइए. चलिए, वुड क्या क्या काम आता है? जल्दी बोलिए. फास्ट. वुड कहां पे लगता है स्टूडेंट्स? ट्राई योर बेस्ट. हाँ जी, वुड सीखा था मेरे से. शिनू, वुड कहां पे लगता है? भूल गए? रिक्वेस्ट. वेरी गुड. और किसी पॉइंट में वुड का यूज? अंशुल? परमिशन. हाँ जी, विल का पास. कोई और यूज वुड का? वुड का यूज? एक पॉइंट आप भूल गए हो, वो पॉइंट बता सकते हो? हाँ, मैडम बोलते हैं. कोई और? एक पॉइंट आप भूल रहे हो वुड का. आप लोग भूल चुके स्टूडेंट्स. मैंने आपको यूनिक चीज सिखाई थी. मैंने आपको कहा था यूज टू एक वर्ड है, यूज बहुत होता है. यूज टू. ये कल बोलेगा यूज टू गो टू पीटी क्लास. मैं पीटी क्लास जाया करता था. आई यूज टू डिलीवर लेक्चर ओवर देयर. मैं वहां पर लेक्चर दिया करता था. Got it? I used to study tenses in Sundays. I used to study so many topics on Sundays. ये का बात क्या है? ये बात है पास्ट हैबिट की. क्लियर? पास्ट हैबिट को वुड से भी दर्शा सकते हैं. ये यूनिक बात है, बहुत स्पेशल बात है. ये हर किसी को नहीं पता होता. यानी कि अगर आपको बोलना है he used to smoke, आप यूं भी बोल सकते हो he would smoke. ये लाइन भी गलत नहीं है. Got it students? तो हमें कभी पास्ट हैबिट दर्शानी होती है तो हम क्या लगाते हैं? यूज्ड टू. यहां तक तो क्लियर है? सीखा था मेरे से? यूज्ड टू. क्लियर? और इस यूज्ड टू को हम और कैसे यूज कर सकते हैं? वुड से. ये बात हर किसी के लिए नई होती है, न्यू होती है. इट्स वेरी डिफरेंट. मेनी पीपल आर नॉट अवेयर कि यूज्ड टू की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? वुड को. और ये दोनों बातें कॉमन है, पास्ट हैबिट को शो करती है. Is it clear? All of you? ठीक है? अब स्टूडेंट्स आपको एक और यूनिक बात सिखाता हूं मैं. यूज टू का हमने आज तक यूज ये सीखा है कि हमेशा ये क्या शो करेगा? पास्ट हैबिट को. मगर कभी कभी आप अपनी बात को भी यूज टू से यूज कर सकते हो. इधर देखो. यूज टू स्विमिंग. यूज टू स्विमिंग. ध्यान से देखो. अब की बार जो यूज टू है वो पास्ट हैबिट नहीं शो कर रहा. क्या शो कर रहा है बता सकते हो मुझे? यहां पर जो यूज टू है ना, ये मेन वर्ब, ये मोडाल के रूप में यूज नहीं हो रहा है. ये भी एक यूनिक बात है. जैसे मैंने आपको नीड सिखाया था, डेयर सिखाया था, वैसे के वैसे जो यूज टू है इस टाइम के अंदर यूज टू मोडाल के रूप में यूज नहीं हो रहा है. इस टाइप पे यूज हो रहा है. आई एम यूज्ड टू स्विमिंग मींस मैं स्विमिंग करने का आदी हूं. Got it? I'm used to playing cricket. बताओ क्या मीनिंग होगा हिंदी में?
गॉट इट? अब आप कहोगे सर ये बात कैसे होगी? तो देखो यहां पर तैरना है या तैर रहा हूं है? तैरना है, राइट? अब आप एक और नई बात सीखने जा रहे हो मेरे से, कंसंट्रेट ओनली ऑन मी। आई एम स्विमिंग। बताइए यहां पर स्विमिंग वर्ब है कि क्या है? यहां वर्ब है भाई, राइट? Here it is verb. If I'll say swimming is a good thing. अब बताइए स्विमिंग क्या है? Noun. Subject. स्विमिंग जीरन है, स्विमिंग नाउन है, Subject. सब्जेक्ट तो है ऑब्वियस। मगर एक बात समझिए कि जब मैं बोलता हूं स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो बताओ तैर रहा हूं कि मैं तैरना है? यहां पर तैरना, तो ये कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, ये जीरन है। और बिल्कुल आपने भी सही कहा, मैडम ने भी, जहां उन्होंने बोला तैरना एक नाउन है। नाउन तो है स्टूडेंट, मगर इसे नाउन विद आईएनजी कहते हैं, जिसका दूसरा वर्ड हो जाता है जीरन, जो इन्होंने यूज किया। वेरी गुड। तो जीरन इज अ गुड वर्ड फॉर दैट। अब मुझे बात बताइए, जब कभी नाउन लगा हो, जैसे मैं आपको एक लाइन बोलता हूं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब बताइए ये जो गर्ल है ये क्या है? ये नाउन है? गर्ल नाउन है? ये ब्यूटीफुल क्या है? वेरी गुड। ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पर यूज टू किस रूप में यूज हो रहा है? एडजेक्टिव। मोडाल यूज नहीं हो रहा है। गॉट इट? अब मैं आपसे दोबारा बोलता हूं आई यूज टू स्विम। अब बताइए, अब बताइए क्या लाइन बनी? आई यूज टू स्विम, ये मोडाल है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या जा रहा है? इसका मीनिंग जा रहा है मैं स्विमिंग किया करता था। वन डे मिरेकल नहीं होगा, एक दिन में आप जल्दी से नहीं सीखोगे, इसलिए जॉट करते जाओ, घर पे 10 बार पढ़ना, तब शायद आपके समझ में आ जाए कि यूज टू मोडाल के रूप में कब यूज होगा और एडजेक्टिव के रूप में कब यूज होगा। व्हाट इट? मैं बोल रहा हूं आई यूज टू स्मोक, इसका मतलब क्या है? मैं स्मोकिंग किया करता था। आई एम यूज टू स्मोकिंग। अब बताइए, आदी हूं, और यहां पर जो यूज टू है वो किस में यूज हो रहा है? एडजेक्टिव में, क्योंकि सामने नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन प्लस आईएनजी मतलब जीरंड है, राइट? तो ऑब्वियसली ये एडजेक्टिव है। मगर आई यूज टू स्विम, आई यूज टू स्मोक, ये क्या है? ये पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है। और इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? यूज टू की जगह वुड, राइट? मगर अब जो हम कंसेप्ट सीखने, ये क्लियर है सबको? इसे पक्का क्लियर? आप लिख लो, वन डे मिरेकल नहीं होता, धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको नीड और उसका बताया था, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक वर्ड समझिए स्टूडेंट्स, आप कभी कभी अपने दोस्त को कंप्लेन करते हो, आप उसको बोलते हो यार तूने अगर जिंदगी में इंग्लिश सीखी होती ना तो मैं भी सीख चुका होता, तू अगर मेरे साथ चलता ना तो मैं भी चल चुका होता। When I was in college, my personal experience, one of my friend he told me, यार अपने ना इंग्लिश सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, और मुझे नहीं पता था कि कम्युनिकेशन एक ओशियन है। मुझे लगता था कि जितना मुझे दिखता है इतनी दुनिया है। तो मैंने उसको बोला यार मैं क्यों सीखूं, मैं तो इंग्लिश मीडियम का लड़का हूं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो इंग्लिश ऑलरेडी आती है। कहता नहीं यार अपने किसी इंटेलिजेंट से मिलेंगे करेंगे तो अपने कुछ ज्यादा सीखेंगे। मैंने कहा यार मेरे को जरूरत नहीं है, तू अपना देख। ही ब्राइब्ड मी, उसने मुझे ब्राइब किया और मुझे बोला यार मैं तुम्हें ना पोहे खिलाऊंगा और तुम चलो यार मेरे साथ। मैंने हाँ यार पोहे खा लूंगा, बाकी तू चलने वाली बात कहता है मैं नहीं जाऊंगा। वो कहते ठीक है यार देख पोहे रास्ते में है तो मैं खिला दूंगा, फिर मेरे साथ चल लेना। मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगा। सिर्फ मैं उस वजह से उसके साथ चल दिया। बट व्हेन आई मेट द पर्सन हु वाज रियली इंटेलिजेंट, बहुत ही डायनेमिक पर्सन था, जब मैं उनसे मिला जिनका लेक्चर मैंने अभी भी आपको सुनाया था, जब मैं इन लोगों से मिला तो आई रियलाइज्ड दैट आई वाज अ फ्रॉग इन द वेल, स्टिल आई नीड टू बिकम फ्रॉग इन द ओशियन। मुझे रियलाइज हुई ये बात, और जब रियलाइज 1 मिनट में हो जाती है, यानी कि ऐसा आपको टाइम नहीं लगता किसी आदमी को जज करने में, 1 मिनट में आप जज कर लेते हो ये आदमी मेरे से कितना ऊपर है। 1 मिनट में आपको पता लग जाता है, 2 मिनट बाद में आपको पता लग जाएगा ये कितना आगे है मैं कितना पीछे, कोई टाइम नहीं लगता। और मुझे 1 मिनट में उस आदमी से मिलते ही जज कर लिया कि वाकई में अगर ये आदमी की संगत में मैं रहूंगा तो मुझे बेनिफिट जरूर होगा। एंड आई जॉइंड दैट, आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर। सेम केस हियर। तो मैं अपने दोस्त को कभी ये नहीं बोला, या मेरे दोस्त ने मुझे कभी नहीं बोली ये बात, मगर हम अक्सर अपने फ्रेंड्स को कई बार ये बात बोल लेते हैं यार तू ये काम करता ना तो मैं भी कर लेता, यार तू ये करता ना, तू कॉफी पीता मैं भी पी चुका होता। अब इस बात को ध्यान से देखो, यदि तुम पीडी क्लास ज्वाइन करते तो मैं भी पीडी क्लास ज्वाइन कर चुका होता। मुझे ये बताइए कि यहां पर यदि आ रहा है,
यदि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने अभी भी आपको सिखाया था। इफ के साथ क्या नहीं आता, अभी भी सिखाया था। इफ के साथ क्या नहीं आता, विल और शैल नहीं आता। अगर विल नहीं आएगा तो वुड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। विल नहीं आएगा तो वुड कैसे आएगा? तो हम लोग एक और बात सीखने जा रहे हैं। इफ यू हैड टेकन कॉफी I would have also taken. समझिए बात को। अब मुझे ये बताइए, ये जो इफ वाली लाइन है, क्या ये कभी प्रिंसिपल क्लॉज हो सकती है? ये नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं कि इफ वाली लाइन कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होती है। क्लियर है? इसका मतलब जो सेकंड लाइन है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। और क्या मुझे आप बता सकते हो कि यदि मैं ऐसा लिखता इफ यू वुड, इफ यू विल, तो लाइन सही होती? लाइन गलत होती, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि इफ के साथ क्या नहीं आता, विल नहीं आता, शायद नहीं आता। इसका मतलब वुड और शुड भी नहीं आएगा। तो हमने ये बात ध्यान से देख ली है कि इफ यू हैड टेकन कॉफी आई वुड हैव आल्सो टेकन इट। इफ यू हैड गॉन टू मुंबई आई वुड हैव आल्सो गॉन। इफ यू हैड बीन टू दिल्ली I would have also gone. मैं भी जा चुका होता। अगर आपने टी शर्ट पहनी होती तो मैं भी टी शर्ट पहन चुका होता। If you had worn, right? या put on, और क्या कहते हैं, मैंने एक और वर्ड सिखाया था आपको, पहनना। वियर हो गया, मैंने worn बोल दिया। मैंने आपको एक नया वर्ड सिखाया था पहनने को, आप भूल चुके हो, don, याद है? D-O-N। तो हम लोगों ने ये बात नोटिस करी। अब एक और वे होता है स्टूडेंट्स इस लाइन को लिखने का, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको एक यूनिक वे मिलेगी एक लाइन में। इस लाइन को कभी कभी आपको ऐसी भी लिखी मिलेगी, हैड यू बीन गॉन, हैड यू टेकन कॉफी आई वुड हैव आल्सो टेकन। तो हमने एक बात नोटिस करी, हमने एक चीज बहुत अच्छे से सीख ली है, वो है वुड हैव। वुड हैव कब यूज होगा? फिर से बताओ मुझे हिंदी में, वुड हैव कब यूज होगा? जब आप क्या बोलोगे हिंदी में? कर लिया होता, मैं भी कर लिया होता, मैं भी कर चुका होता, तो आप क्या यूज करोगे हमेशा? वुड हैव का प्रयोग करोगे। क्लियर है? मैं आपसे एक लाइन बोलता हूं, यदि तुमने लेक्चर अटेंड किया होता, पाठक बोल रहा है मनोज को कि मनोज मेरे पास तो बाइक है नहीं, तो तू मुझे ले आ यार। तो मनोज लेके नहीं गया और मनोज खुद भी नहीं गया। तो पाठक बोल रहा है नेक्स्ट डे कि यदि मनोज लेक्चर अटेंड करता तो मैं भी लेक्चर अटेंड कर चुका होता। अब इसकी इंग्लिश बताइए, कम ऑन फास्ट। If Manoj had attended lecture I would have also attended. very good, clap for me, good, very good, शाबाश। Coming on the most important thing, again an interesting part, look up here, sometimes we are supposed to show the purpose। कभी कभी हमें क्या शो करना पड़ेगा? पर्पस शो करना है स्टूडेंट्स। तो हमने इधर लाइन लिखी, she eats so that she survive। इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूं, she studies so that she pass। यहां पास कर दूं और यहां स्टडीज कर दूं। मुझे बता सकते हो यहां पे क्या वर्ड है? बिग क्लैप फॉर नेहा, वेरी गुड, रियली मे विल कम। Do you know why? Because here it is showing a purpose। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या चीज शो कर रहा है? पर्पस। और कभी भी पर्पस शो तो हम लोग किसको यूज करेंगे? We'll use always present and here would be may। Clear स्टूडेंट्स? तो हमने अभी तक टेंसेस सीखे थे, हमें टेंसेस बहुत अच्छे से आते हैं। अगर किसी को नहीं आते तो वो प्रीवियस लेक्चर्स सुन ले, 2-3 बार लेक्चर्स हुए हुए टेंसेस के, आप बहुत वेलबल्स हो जाओगे टेंसेस सीखने में। आज जो हमारा जो यूनिक टॉपिक था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये था सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, राइट? हमने हल्का सा रिवाइज करना है और अपनी बात पे फिर से जाना है। अपने रिवीजन के लिए मैं आप सबकी हेल्प लूंगा। आई वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड हेल्प मी।
मुझे बताइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पार्ट था वो क्या था? सबसे पहले जो पार्ट था वो था कि मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर हो प्रिंसिपल क्लॉज में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में आ सकता है? तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सपोज योर प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट, तब क्या करोगे? पास्ट। कुछ एक्सेप्शन सिखाए थे, क्या क्या थे वो? यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल, साइंटिफिक लॉ, फोर्थ कोटेशन। वेरी गुड। फिर मैंने आपको एक बड़ा यूनिक कांसेप्ट सिखाया था। मैंने आपको बताया ये टॉपिक आपको हर बुक में नहीं मिलेगा। देन क्या था? देन में पास्ट टेंस था, इस तरफ प्रिंसिपल क्लॉज की तरफ पास्ट होगा, राइट? और बीच में अगर देन आए यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले देन आए तो उस पर कौन सा टेंस आ सकता है? कोई भी टेंस कोई भी टेंस आ सकता है, यानी कि तीनों टेंस एप्लीकेबल है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, हमने सीखा था एज इफ और एज द। इफ के बाद क्या आता है? पास्ट, राइट? और यदि मैं, तो हमेशा क्या आएगा? वर। अगर यदि तुम होता तो, अगर वह होता तो, इतना मत सोचो, वर ही आएगा, चाहे ही हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, कुछ भी हो, वर ही आएगा यदि हो तो। और मैंने आपको एज इफ एज नाउ का कांसेप्ट सिखाया था। एज इफ एज नाउ के अंदर मैंने कहा था यदि इस तरफ प्रेजेंट हो तो नेक्स्ट एज इफ एज नाउ के बाद क्या होगा? पास्ट होगा। और यदि अगर इस तरफ पास्ट हो तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड। चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम में मॉडल सिखाया था, लेस का एक इंपॉर्टेंट प्ले है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले लेस लगाओ तो बताइए एक और क्या मॉडल यूज होगा? शुड। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर के अंदर दो बातें हो रही है। यदि लेक्चर हुआ तो मैं अटेंड करूंगा। इफ देयर इज अ लेक्चर, आई विल और आई अटेंड। आई विल क्योंकि इसके साथ विल नहीं आ सकता, इसलिए विल को मैं वहां यूज कर रहा है। आई शैल हो जाएगा, बट आई शैल अटेंड। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर मैंने आपको कहा था पास्ट टेंस के अंदर दो बातें हैं, एक के बाद एक है। डॉक्टर और पेशेंट वाला एग्जांपल दिया था, राइट? कुछ नया करते हैं, अपने नया पॉइंट। मेरे पानी पीने से पहले आपने पानी पी लिया था। इंग्लिश करिए। You had drunk water before I drank. Clear? Past है, सिंपल बात डालना है। अब बताइए मुझे इसमें हमने क्या ध्यान दिया? हमने ये ध्यान दिया कि जो काम पहले हुआ है उसको क्या करना है? परफेक्ट में डाल दो। पेशेंट पहले मर गया डॉक्टर आने से पहले, क्या हुआ? परफेक्ट में डाल दो। ट्रेन पहले चलेगी मेरे पहुंचने से पहले, ट्रेन को क्या करो? परफेक्ट में डाल दो। क्लियर? फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, वुड हैव। वुड हैव में मैंने आपको यूज्ड टू सिखाया था। यूज्ड टू हमेशा किस में यूज होगा? मोडाल्स के रूप में यूज होगा। यूज्ड टू क्या शो करेगा? पास्ट हैबिट को शो करेगा। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यूज्ड टू कभी-कभी किस में यूज हो सकता है? एडजेक्टिव में यूज हो सकता है। कैसे? I am used to playing cricket. I am used to playing football. I am used to teaching. I am used to deliver lectures. क्या मतलब है इसका? I am used to deliver lectures. English क्या हुई? मैं भाषण देने का आदी। हाँ, मैं भाषण देने का आदी हूँ तो हूँ भाई। तो ये बात क्या हुई? ये आपकी हैबिट एक तरीके से प्रेजेंट आपकी आदि होने का शो कर रहा है। और यहाँ पर जो भाषण देना है वो भाषण दे रहे हो या देना है? देना है। इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये जिरेंट है। जिरेंट क्या होता है? फिर से सुन लीजिए, इट इज नाउन प्लस आईएनजी। ही इज स्विमिंग इन द वाटर। यहां स्विमिंग वर्ब है, ध्यान से समझिए। स्विमिंग इन द वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। यहां स्विमिंग क्या है? जिरेंट है। गॉट इट? आई एम ईटिंग फ्रूट्स। ईटिंग क्या है? ईटिंग फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। जिरेंट है। तो हमने यहां पर सीख लिया कि यहां पर यूज टू किस में रूप में यूज हो रहा है? एडजेक्टिव के रूप में, और वहां पर मोडाल के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है, जब मोडाल के रूप में यूज होता है, तो उस दौरान हम कभी-कभी यूज टू को किस और मोडाल के साथ यूज कर सकते हैं? वुड के साथ। हम उसमें यूज टू को हटा देंगे और हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे? वुड। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूं? आई वुड प्ले क्रिकेट। बोलते क्यों नहीं?
I used to go to PD class. क्या बोलोगे? I would go to PD class. जहाँ तक क्लियर था. उसके बाद में मैंने आपको सिखाया था कि यदि हमें कभी ऐसे कहना हो यार तुमने काम किया होता ना, मैं भी कर लेता. तुमने आज टेंसेस सीखे होते ना, मैं भी सीख चुका होता. तुमने YouTube पे सर का लेक्चर सुना होता, मैं भी सुन चुका होता. इंग्लिश करिए. तुमने YouTube पे सर का लेक्चर सुना होता, मैं भी सुन चुका होता. कौन करेगा इसकी इंग्लिश? If you had listened lecture या sir's lecture, I would have also listened. Here नहीं आएगा students. Here वो होता है unnecessarily जो noise होता है, वो here है. आपको बाइक्स की आवाज आ रही होगी, कभी फैन चलता है फैन की आवाज आती है, ये क्या है? ये here है. Noise के लिए हमेशा क्या वर्ड यूज होगा? बट कोई भी चीज जो आप सेंसेस के साथ सुन रहे हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे? लिसन. ओके, सो यू विल यूज हियर लिसन. लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया था वो क्या था? पर्पस. पर्पस के अंदर मैंने आपको बहुत यूनिक बात सिखाई थी कि मैंने आपको कहा था कि चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, अगर हमने ये बात बोली है, मैं खाता हूं, मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं, ताकि, अब बताइए क्या वर्ड यूज होगा? हमेशा वर्ड यूज होगा may. Is it clear students? If you want to learn English and want to be a perfect in English, you should have a good command of it. और command एक ही possibility से बन सकती है when you go through every topic. During my lectures, I had delivered you lectures of modals. Today, I had delivered you sequence of tenses. Before few days, I had delivered you lectures on tenses. Even I had delivered lectures on verbs, on vocab building. I had delivered lectures on interviews. I had delivered lectures on mocks. I had delivered lectures on body language. Even I had delivered one more lectures on how to deal with people. लोगों से behave कैसे करना है, dealing with people. All these lectures are very crucial. Learn them, adopt them. If once you learn it, you will develop yourself. और इतने prune हो जाओगे, इतने prudent बन जाओगे that nobody can stand in front of you. You will become a very, very different personality. और मैं यही आप सबसे चाहता हूँ कि आप वाकई में ऐसे बन जाओ, एक यूनिक लगो दुनिया में. Right, students? So I want all of you to be the best. Will you all become the protagonist? Yes, बोलिए. मैं चाहता हूँ एक जोरदार yes होना चाहिए. Big clap for everybody. Very good. Please. Thank you.